students, welcome back to the channel with the 13th chapter of class 8 science, that is about our home Earth, a unique life sustaining planet. Today we will learn about our home planet, which is known as Earth, and as I have told you, it's a unique and also the life sustaining planet in the universe. All right, so let's start and learn about the chapter. First of all, the question is that why is Earth a unique planet? Earth a unique planet क्यों है? See, what makes Earth unique? Although there may be billions of planets in the universe, Earth is the only where life, as we know it today, exists and flourishes in all its form. So students, although हमारे पूरे universe में billions of planets are there, लेकिन Earth अकेला ऐसा planet है जिस पे life exist करती है, as we all know. ठीक है? चलो. Now, have we ever thought about where life on Earth actually exists? अब Earth में actually में life कहाँ exist करती है? So students, all the mountains, rivers, forests, animals and humans, ये सभी जो है different types के elements जो है they are found in a very thin layer. ये planet के Earth planet surface पर एक बहुत ही thin layer पे ये सारी चीजें present है. From the highest mountains से लेकर deepest ocean trenches तक, द क्रस्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये सभी क्या है, ये बहुत ही टिनी है, बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर आप अर्थ को एक एप्पल के साइज के साथ कंसिडर करते हो तो अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो एप्पल की स्किन के बराबर थिन है. ऑलराइट, सो दिस फ्रेजाइल लाइफ सस्टेनिंग, एंड यही फ्रेजाइल लाइफ सस्टेनिंग लेयर है जो अर्थ को स्पेशल बनाती है. Now, I often wonder to what make us so unique, allowing living beings to grow and survive. अब अर्थ के पास ऐसी क्या और फीचर्स है जो इसको यूनिक बनाते हैं एंड जिसकी वजह से बाकी सारे लिविंग बींग्स अर्थ पर ग्रो एंड सर्वाइव कर सकते हैं. सो देन लेट्स टॉक अबाउट सम फीचर्स व्हिच मेक्स द प्लैनेट यूनिक एंड आल्सो द लाइफ पॉसिबल ऑन इट. सो स्टूडेंट्स, यू मे कम टू सी दैट अर्थ इज फैसिनेटिंग एंड वाइटल टू अस. अर्थ क्या है, बहुत ही फैसिनेटिंग प्लैनेट है एंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट वेज में, बिकॉज इट गिव्स द एयर वी ब्रीथ. अर्थ हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हमें ब्रीथ करने के लिए रिक्वायर्ड है, वाटर प्रोवाइड करता है विच वी ड्रिंक, एंड ऑल्सो द सॉइल जो क्रॉप्स के ग्रोथ को सपोर्ट करती है. अदर देन दैट अर्थ ऑल्सो प्रोवाइड्स मटीरियल जैसे कि रॉक्स एंड टिम्बर, जिसे हम यूज करते हैं अपने होम्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. एंड यू माइट बी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेक्स अर्थ अ यूनिक प्लैनेट ओनली दैट not only allows life to exist but also supports and sustain it. So the question is that why do the planets of our solar system look like? अब हमारे solar system के जो planets हैं वो सभी जैसे क्यों दिखते हैं? So students, in grade 6 you learned about the solar system, right? तो अब उसी में से कुछ information को recall करते हैं कि हमारा solar system में कितने total 8 planets होते हैं जो sun के around अपने nearly circular orbits में rotate करते हैं, revolve करते हैं. Now, if we talk about the order of their increasing distance from the sun, so in planets की name क्या है? That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And इन सभी planets में से Mercury, Venus, Earth and Mars आपके relatively small rocky planets हैं, where Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune काफी large planets हैं जो कि mostly gases से मिलकर बने हैं. Alright? चलो. Now, all the planets in the solar system, what they're saying students कि सभी जो planets हैं हमारे solar system में वो energy receive करते हैं from the sun. Therefore इसीलिए एक ऐसा planet जो sun के closer है वो क्या होगा, काफी hot होगा, and जितना दूर distance पर एक planet sun से distance पर होगा उतना वहाँ पे क्या होगा, cold होगा. Now does this pattern match? See, in general this is true, but there's an exception. So in general तो ये fact बहुत true है, लेकिन still there's an exception, that is Venus. Venus क्या है student? Venus second planet है from the sun. Alright, लेकिन इसमें highest average temperature है and ये सबसे hottest planet है. Now why is this so? ऐसा क्यों? So students, Venus is so hot not because it is closest to the sun. Venus इसीलिए इतना hot नहीं है क्योंकि वो sun के closest है, ठीक है, बल्कि उसके थिक एटमॉस्फेयर की वजह से वीनस काफी हॉट है जो कि हीट को इंटरनली ट्रैप कर लेता है. ठीक है, तो जो आपके वीनस का एटमॉस्फेयर है वो ऑलमोस्ट किससे बना है, एंटायरली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हीट को एस्केप आउट होने से प्रिवेंट करती है.
एंड इस फिनोमिना को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट मेक्स वीनस, इसकी वजह से वीनस जो है मरकरी से भी ज्यादा हॉटर प्लैनेट है। इवन मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन, स्टिल वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। देन ऑन अर्थ, अर्थ पे जो गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हीट को ट्रैप करती हैं, है ना, किसे, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके जो हमारे वार्म अर्थ के वार्म एटमॉस्फेयर के थ्रू रिलीज करी जा रही है। एंड इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, हमारे प्लैनेट पर एक राइट और एक्यूरेट टेम्परेचर को मेंटेन रखता है फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट मेक्स द अर्थ सस्टेनेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अब अर्थ पर क्या ऐसे सब्सटेंसेस हैं या क्या ऐसे फीचर्स है जो लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्पफुल है। नंबर 1 वी हैव पोजीशन ऑफ द अर्थ। सो सबसे प्राइमरी रीजन जो है अर्थ का विद सपोर्ट लाइफ इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। उसका जो डिस्टेंस है सन के कंपैरेटिवली वो सबसे एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इट इज एट जस्ट द राइट डिस्टेंस वेयर टेम्परेचर अलाउ वाटर टू एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। अर्थ सन से बिल्कुल एक राइट डिस्टेंस पर है जिसकी वजह से अर्थ पर वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर पाता है, ठीक है। अगर अर्थ सन के क्लोजर होता तो वो बहुत ज्यादा हॉट होता और वहां पे सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता, एंड अगर अर्थ सन से बहुत ज्यादा दूर होता तो वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता जिसकी वजह से सारा वाटर वहां पे फ्रीज हो जाता। अब ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द जो लाइफ फॉर्म्स है स्पेशली प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, वो वहां पे ग्रो एंड थ्राइव नहीं कर पाती। ऑलराइट, सो ऑल्दो सम माइक्रोब्स, उसके अलावा सम माइक्रोब्स आर देयर जैसे कि सर्टेन बैक्टीरिया जो कि फ्रोजन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। बट लिक्विड वाटर इज एसेंशियल, स्टिल लिक्विड वाटर जो है लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल है। अर्थ की जो पोजीशन है फ्रॉम द सन वो ये इंश्योर करती है कि वाटर मोस्टली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जो कि क्रूशियल है फॉर द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म। नाउ द रेंज ऑफ डिस्टेंसेस, अब जो डिस्टेंस की रेंज है फ्रॉम द सन, है ना, जहाँ पे वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में स्टे करता है, उसे बोलते हैं हैबिटेबल जोन। समटाइम आप उसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, ठीक है। एंड एज यू हैव लर्न इन सोशल साइंस की मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ज्यादातर अर्थ सरफेस किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। सो दैट इज वाई विल सीन फ्रॉम द स्पेस, इसीलिए जब आप स्पेस से ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ आपको ब्लूइश कलर का अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन इट, एंड जिसकी वजह से अर्थ को वी कॉल ब्लू प्लैनेट ऑल्सो। ओके, चलो सेकेंड थिंग, नाउ विल टॉक अबाउट साइज ऑफ द अर्थ। अब बात करते हैं अर्थ के साइज की। सो देयर आर सेवरल अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सस्टेनेबल बनाते हैं ऑन द अर्थ, ठीक है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, वो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, राइट। एंड ये इंश्योर करता है कि जो अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट है वो फेयरली कांस्टेंट रहे प्लैनेट पर थ्रू आउट द ईयर, जिससे ना तो एक्सट्रीम समर्स वहां पे फेस किया जाए एंड ना ही एक्सट्रीम विंटर्स वहां पे फेस किया जाए। हाउएवर, एक मॉडरेट टेम्परेचर होना ड्यू टू द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज नॉट ओनली द फैक्टर जो अर्थ को हैबिटेबल बनाता है, ओके। उसके अलावा प्लैनेट क्या है, प्लैनेट का एक राइट साइज भी है जिसकी वजह से एक एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड मेंटेन रहता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर आल्सो कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक लेयर ऑफ गैस है जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में है एंड इट इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है। एंड यू आल्सो लर्न कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इस एटमॉस्फेयर को एंड जो अदर ऑब्जेक्ट्स है उन्हें भी अपने टुवर्ड्स पुल करती है। तो अगर अर्थ बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का होता, है ना, सेम एवरेज डेंसिटी के साथ लेकिन स्मॉलर साइज का होता, तो उसकी ग्रेविटी बहुत वीक होती कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस को होल्ड कर पाए। एंड ऐसा नहीं हो पाता, अगर होल्ड नहीं कर पाता एटमॉस्फेयर तो सारी गैसेस स्पेस में एस्केप आउट हो जाती। फॉर एग्जाम्पल मार्स का एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से 100 टाइम्स थिन है, एंड मरकरी में इसीलिए क्या नहीं प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है एट ऑल। ऑन द अदर हैंड अर्थ अगर बहुत ज्यादा लार्जर साइज का होता तो उसकी स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने टुवर्ड्स पुल कर लेती, इतने फोर्स के साथ कि हमारी बोन्स भी क्रश हो जाती, ठीक है। तो क्योंकि अर्थ बिल्कुल एक्यूरेट एंड राइट साइज का है तो वो अपने सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर को रिटेन कर सकता है विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। नाउ द ऑक्सीजन, अब उसके बाद जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, वो हमें अलाउ करती है टू ब्रीथ
एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, क्या है, ऑलमोस्ट सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर नेसेसरी भी है। ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ओनली, तो ऑक्सीजन गैस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो कि ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट इज ओजोन? इट इज अ मॉलिक्यूल मेड विच इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जहां से आपकी ओजोन लेयर बन जाती है। एंड ओजोन लेयर एज अ शील्ड, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, जो कि सारी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज विच इज रेडिएटेड बाय द सन उन्हें ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अगर ये रेस अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती तो ये लिविंग सेल्स को डैमेज कर देती, लेकिन ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, वो इन रेस को अर्थ एटमॉस्फेयर तक पहुंचने से ब्लॉक कर देती है। सो देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, okay, and it is only present in the Earth's atmosphere. See, ancient scientific wisdom. Students, India's मंगलयान, जिसे हम मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में by the Indian Space Research Organization and it marked a significant step in exploring Mars. ठीक है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी किया गया था जिन्हें हमने डिजाइन किया था कि वो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सके, सरफेस को, एंड ऑल्सो द एविडेंस ऑफ पास्ट वाटर। इनमें से कुछ टूल्स थे जिनसे साइंटिस्ट को हेल्प मिली कि वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट कर सके, सच एज कि वेदर मार्स वाज एवर कैपेबल, क्या मार्स कभी भी कैपेबल था लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ टूल्स जो थे साइंटिस्ट ने डिजाइन किए थे एंड इस मिशन के दौरान उन्होंने कैरी किया था। सो मंगलयान डेमोन्स्ट्रेटेड, मंगलयान से वर्ल्ड को क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि इंडिया भी क्या कर सकता है, एडवांस स्पेस साइंस को कंडक्ट कर सकता है अपने एफिशिएंट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके, विच ब्रिंग्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स क्लोजर टू ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट वी कम टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, इन ग्रेड 6 यू लर्न कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा फिक्स डायरेक्शन में पॉइंट करता है, बिकॉज अर्थ अपने आप में एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड एज डिस्कस इन चैप्टर 4 ऑल्सो कि जो एरिया एक मैग्नेट के अराउंड होता है जहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस को फेल्ट किया जा सकता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सो इट इज बिलीव्ड कि जो मोल्टन आयरन है हमारे अर्थ के कोर में, है ना, उसका मूवमेंट क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो अर्थ कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड किया जाता है बाय टिनी हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पेस। इनमें से कुछ पार्टिकल जिन्हें आप कॉस्मिक रेज कहते हैं, ये हमारे यूनिवर्स के डिस्टेंट पार्ट से आती हैं, वाइल अदर्स जिन्हें आप सोलर विंड कहते हैं, ये सन से आती हैं। अब ये पार्टिकल्स हार्मफुल हो सकते हैं बिकॉज ये एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकते हैं, ओजोन लेयर रिड्यूस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अलाउ मोर डेंजरस यूवी रेज टू रीच द अर्थ विच कुड थ्रेटन द लाइफ ऑन द अर्थ। सो फॉर्चुनेटली अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एक्ट करता है। ये इनमें से काफी सारे हार्मफुल पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर प्रिजर्व रहेगा एंड इट विल कीप द लाइफ ऑन द प्लैनेट सेफ। नाउ अर्थ यूनिक पोजीशन, अब सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ की जो यूनिक पोजीशन है जिससे लिक्विड वाटर अलाउ कर पाता है टू एग्जिस्ट, ठीक है, कंबाइंड विद द साइज, एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमारे अर्थ के पास है, ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं अर्थ को एक ऐसा प्लैनेट बनाने में जहां पे लाइफ डेवलप कर सकती है, लाइफ कुड सर्वाइव। नाउ व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन्ड ऑन अर्थ? फॉर स्टूडेंट्स, अर्थ के पास एज वी टोल्ड यू कि सारी राइट कंडीशंस हैं लाइफ के लिए, लेकिन स्टिल ये एक इंट्रिकेट कनेक्शंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, ठीक है, जो वहां पे लाइफ को फ्लरिश करने के लिए अलाउ करती है। इन ग्रेड 6 एंड 7 यू लर्न कुछ एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज को हमने डिस्कस किया था, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मिनरल्स, एंड ऑल्सो यू स्टडीड द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में होते हैं। नाउ लेट अस एग्जामिन कि कैसे ये सभी एलिमेंट्स एक साथ वर्क करते हैं टू सपोर्ट एंड सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एयर, वाटर एंड सनलाइट। सो जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है जो कि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स को रिक्वायर्ड है फॉर द रेस्पिरेशन। अब सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है विच इज अगेन एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। नाउ रेडिएशन, अब जो सन के थ्रू रेडिएशन आती है स्टूडेंट्स, वो हमारे अर्थ को वार्म कर देती है, जिसमें से कुछ हीट जो है एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से।
ऑल्दो माइल्ड, लेकिन ये इफेक्ट क्या करता है, टेम्परेचर को इतना हाई एनफ रखता है वाटर के लिए कि वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में रहेगा. एंड इन ग्रेड 7 यू ऑल्सो लर्न अबाउट द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, राइट, है ना. सो विदाउट एन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर के बिना अर्थ जो है हीट को लूज कर देता है स्पेस में, एंड बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर. ठीक है. एंड इसी तरीके से वी कुड से कि यहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अर्थ पर एक वार्म एंड स्टेबल क्लाइमेट मेंटेन रखता है. ना वाटर क्या स्टूडेंट, वाटर बहुत वाइटल है लाइफ के लिए. अबाउट 70% हमारा अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है, एंड इट इज फाउंड इन द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स, सीज, ओशियंस एंड अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स. अब ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं. इन चैप्टर 7 यू लर्न कि वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, एंड इन ग्रेड 7 आपने देखा था कि वाटर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट लीव्स. एनिमल्स में वाटर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल है, एंड ऑल्सो बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. ये सारे फंक्शंस एसेंशियल है फॉर द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग. इवन दो मच ऑफ अर्थ आपका, इवन दो काफी मतलब मेजॉरिटी ऑफ अर्थ जो है वाटर से कवर्ड है, स्टिल वी नो कि बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर है जो क्या है, पोर्टेबल है, मींस इट इज गुड फॉर योर ड्रिंकिंग पर्पस, राइट. चलो, अब उसके अलावा वी स्टिल नो कि बहुत लिटिल वाटर है अबाउट लाइफ इन द डीप ओशंस. जो हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स को होस्ट करता है, फ्रॉम द टिनी प्लैंकटन टू द जाइंट व्हेल्स विद मेनी स्पीशीज स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड. ओशियन, लेक्स, रिवर्स, ये सभी एक रिच हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए. फ्रेश वाटर भी नेसेसरी है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एंड ह्यूमन पॉपुलेशन को वर्ल्ड वाइडली सपोर्ट करने के लिए. वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्लाउड्स बनाता है, जिससे रेन और स्नोफॉल होता है, which again replenishes the rivers, lakes and underground water sources. Rainfall plants and animals के different types को भी influence करते हैं, which survive in a region. Moving air भी weather patterns and rainfall को affect करेंगे, which will in turn shape the farming, water availability and the life on land. Next is soil, rocks and minerals. So students, beneath our feet, हमारे feet के नीचे एक extraordinary layer है, that is the earth crust, जो कि रॉक, सॉइल एंड मिनरल से बनी. दो ये क्रस्ट आपको बहुत हार्ड एंड लाइफलेस अपीयर होती है, लेकिन यही वो लेयर है जो नियरली एवरीथिंग, हमें हर एक चीज वो प्रोवाइड करती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो एंड सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है. फ्रॉम द सॉइल से लेकर जो कि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, तो द मिनरल्स जो रिसोर्सेज सप्लाई करता है, सच एज सॉल्ट, कोल, ऑयल एंड द मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, ये सारी चीजें इस आउटर लेयर में ही प्रेजेंट है, जो कि इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ दोनों को सस्टेन कर सकती है. द सॉलिड पार्ट, अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है इंक्लूडिंग रॉक, सॉइल एंड मिनरल, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है जियोस्फेयर. सॉइल आपको एक ऑर्डिनरी डर्ट की तरह दिख सकती है, बट इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पैक्ड होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है टू ग्रो. एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं रॉक्स के स्लो ब्रेकडाउन से एंड प्लांट्स और जो एनिमल्स के रिमेन्स है उनके डिकम्पोजिशन से. ऑलराइट, चलो. नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स, काफी सारी डिफरेंट टाइप्स की लैंडफॉर्म्स हैं, लाइक रॉक, सॉइल एंड द अदर फीचर्स ऑन द अर्थ. एंड ये जो वैरायटी है अलॉन्ग विद द प्रोसेसेस जो कि उन्हें शेप प्रोवाइड करती है, चेंज करती है, दैट इज नोन एज जियोडाइवर्सिटी. सो जियोडाइवर्सिटी क्या, एक यूनिक हैबिटेट क्रिएट करेगी जिससे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ यहाँ पे थ्राइव कर सकती है. एंड हमारे नेचर के जो नॉन लिविंग पार्ट्स है, सच एज सॉइल, रॉक्स एंड वाटर, ये केवल एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि ये एक्टिवली हमारी अर्थ पर लाइफ स्टोरी को शेप प्रोवाइड करते हैं. Next we have what, plants, animals and microorganisms. Students, from the chapter on microbes to the chapter on ecology, we have learned कि अर्थ क्या है. अर्थ is teeming with life, from the trees, shrubs and herbs to the animals, insects and microorganisms जो कि इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आइज. सभी लिविंग बींग्स टुगेदर विद द प्लेसेस जहाँ पे वो इनहैबिट करते हैं, ये मिलकर बायोस्फीयर बनाएंगे. बायोस्फीयर में आप लैंड, वाटर, एयर को इंक्लूड करते हो, जहाँ पे लाइफ अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है टू सर्वाइव एंड ग्रो. एज यू स्टडीड कि लिविंग बींग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है एंड अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है. प्लांट्स आपके फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू,
एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स उन्हीं प्लांट्स को या अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं एंड डिकम्पोजेस इन डेड मैटर को डिकम्पोज करके ब्रेक डाउन करके वापस न्यूट्रिएंट्स जो है रिटर्न कर देते हैं टू द सॉइल। सो इस तरीके से नेचर अपने आप में एज अ सिस्टम फंक्शन करता है जहाँ पे सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करेंगे टू सपोर्ट द लाइफ ऑन इट। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। हैव यू एवर वंडर्ड कि कैसे हाउ सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ स्टे इन हार्मनी? ओके, सो स्टूडेंट्स, अर्थ एक वास्ट टीम वर्क प्रोजेक्ट की तरह फंक्शन करता है बिटवीन द नेचर, वेदर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ एक कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम है जहाँ पे सब लैंड, एयर, वाटर, लिविंग बीइंग सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इवन जो स्मॉल चेंजेस हैं सच एज कटिंग डाउन अ फॉरेस्ट, ये भी रेनफॉल, सॉइल क्वालिटी, एयर क्वालिटी एंड जो एनिमल्स उस हैबिटेट के ऊपर डिपेंडेंट है उन सभी को अफेक्ट करते हैं। तो लाइफ जो है ऑन द अर्थ वो कंटिन्यू कर रही है, नॉट बिकॉज केवल एक सिंगल फैक्टर की वजह से लाइफ अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, बल्कि हर एक चीज जो बैलेंस में वर्क कर रही है, इट सपोर्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ। एंड ये बैलेंस ही है जो हमारे प्लैनेट को हैबिटेबल बनाता है। एंड दैट इज वाई protecting clean air, water, soil and all forms of life is not just important but also essential for the keeping earth healthy for the future. Okay? Now, next we have what keeps life from disappearing. Life जो है किस वजह से disappear हो रही है, ठीक है? See students, if plants and animals, अगर plants and animals reproduce नहीं करेंगे तो अर्थ पे जो लाइफ है वो इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएगी। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि हर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता रहे एंड उसकी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे ऑन द अर्थ सरफेस। सो वी यूजुअली एक्सपेक्ट कि एनिमल्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं की तरह रिजेंबल करते हैं, जैसे कि काउस के काव्स होते हैं, कैट्स के पास किटन्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अपने इंस्ट्रक्शंस को अपने ऑफस्प्रिंग्स में पास कर देते हैं अबाउट हाउ टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें आप जेनेटिक मटेरियल या जीन्स बोलते हो, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आप जीन्स को एक डिटेल इंस्ट्रक्शन मैनुअल कंसिडर कर सकते हैं विच इज प्रेजेंट इनसाइड ईच सेल, ठीक है? अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ब्लड की फॉर्मेशन को गाइड करेंगे, whereas other instructions bones, muscles और skins के डेवलपमेंट को डायरेक्ट करते हैं। एंड ऑल टुगेदर ये इंस्ट्रक्शंस इंश्योर करेंगे कि एक काफ काउ में ग्रो करे एंड एक किटन कैट में ग्रो करे। सॉरी, काफ काउ में ग्रो करे एंड एक किटन कैट में ग्रो करे। हाउएवर जो रिप्रोडक्शन है वो केवल सेम काइंड ऑफ स्पीशीज को प्रोड्यूस करने के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि इट ऑल्सो अलाउज फॉर द स्मॉल चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना? समटाइम्स कभी कभी ये चेंजेस एक प्लांट और एनिमल को हेल्प करता है कि वो एक न्यू एनवायरनमेंट में बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, ओवर द टाइम के साथ कैमल्स में क्या हो चुका है, हम्प्स डेवलप हो चुके हैं जिसके थ्रू वो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर फैट को स्टोर कर सकते हैं, राइट? इवन माइक्रोब्स भी क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि आपने चैप्टर में सीखा था ऑन द हेल्थ, कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, जिसकी वजह से वो परसिस्ट कर पाते हैं। एंड ओवर मेनी जनरेशन, अगर बहुत जनरेशन तक से चलता है तो ये चेंजेस न्यू ट्रेड्स, इवन एंटायरली न्यू टाइप ऑफ लिविंग बींग्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। सो इसीलिए वी कुड से कि रिप्रोडक्शन केवल लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को या किसी भी स्पीशीज की लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को ही मेंटेन नहीं रखता, बल्कि ऑल्सो हेल्प्स द लाइफ टू अडेप्ट, चेंज एंड कॉन्टिन्यू इन द न्यू फॉर्म्स। बट हाउ कैन द सेम प्रोसेस, देखिए कैसे ये सेम प्रोसेस सिमिलैरिटी के लिए भी वर्क कर सकता है। फॉर इंस्टेंट, जैसे काउ जो है अपने काफ को बर्थ देती है, एंड वेरिएशंस के लिए भी काम करता है। वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं इनके कलर, हाइट या किसी भी अदर कैरेक्टरिस्टिक में, राइट? सो दिस इज अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन। सो बेसिकली स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। एक ऐसा जहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स ऑलमोस्ट अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, एंड दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा है जहाँ पे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होंगे, राइट? सो एक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि एग्जैक्ट उनकी ही कॉपीज होंगी, आइडेंटिकल जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के साथ।
बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है टू डिफरेंट पेरेंट्स के कंबाइन होते हैं एंड तब जाके ऑफस्प्रिंग क्रिएट होंगे जो कि एग्जैक्टली किसी भी एक पेरेंट की तरह नहीं दिखते. सो ये ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, कुछ ट्रेड्स अपने दोनों ही पेरेंट्स के शेयर करेंगे एंड ऑल्सो दे विल हैव सम डिफरेंसेस ऑल्सो. सो ये जो मिक्सिंग है ये प्रिजर्व करते हैं यूजफुल ट्रेड्स को वाइल न्यू वंस ऑल्सो अलाउड टू अपीयर. एंड ओवर मेनी जनरेशंस ये स्मॉल डिफरेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिससे एक सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं एंड इवनली एंटायरली न्यू लाइफ फॉर्म्स. ऑलराइट, चलो सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो मोस्टली एंड जो मेनी प्लांट्स है स्टूडेंट्स वो रिप्रोड्यूस करता है जहां पे केवल प्लांट का कोई भी एक पार्ट सच एज अ लीफ, स्टेम और रूट सॉइल में प्लांट किया जाता है. एंड ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को वी कॉल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ऑलराइट, चलो सेकंड वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टिपिकली वन इज मेल अदर इज फीमेल. एंड ये काफी इजी टू ऑब्जर्व होता है एनिमल्स में. बट डिड यू नो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं? यस, ओके. देन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट, इनमें भी टू मेटिंग टाइप्स होते हैं जो कि टू पेरेंट्स की तरह फंक्शन करते हैं. देन वी हैव स्पेशल सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन. सो यू माइट वंडर कि अगर दोनों पेरेंट्स अपने जेनेटिक मटेरियल को कंट्रीब्यूट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने के लिए, तो वुडंट जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर डबल जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगे एंड वुडंट दिस कीप डबलिंग विद ईच अदर जनरेशन? So student, this does not happen. ऐसा नहीं होता है बिकॉज हर एक पेरेंट स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता है विच इज नोन एज गेमीट्स. एंड ये गेमीट्स के अंदर केवल एक पेरेंट के हाफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो जब मेल और फीमेल दोनों ही गेमीट्स कंबाइन करेंगे तो वो एक न्यू सेल बनाएंगे जिसके अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट. बेबीज एग्जैक्टली अपने मदर या फादर की तरह नहीं दिखते. इवन सिबलिंग्स जो होते हैं सेम फैमिली में वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. व्हाई? बिकॉज हर एक बेबी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है अपने दोनों ही पेरेंट्स की वो रिसीव करी जाती है, उसके कॉम्बिनेशन को वो रिसीव करते हैं गैमीट्स के थ्रू. एंड देन ईच गैमीट क्या करता है, यूनिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरी करता है फॉर द ट्रेड्स सच एज आई कलर, हेयर टाइप एंड मेनी मोर. सो स्टूडेंट्स, जब स्पर्म एंड एग कंबाइन होकर बेबी बनाएंगे ये इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट वेज में मिक्स हो जाते हैं. एंड इस मिक्सिंग जो है ईच टाइम डिफरेंट तरीके से होती है जिसकी वजह से हर एक चाइल्ड यूनिक होता है. दैट इज वाई वन चाइल्ड, इसीलिए एक चाइल्ड हो सकता है कि एक चाइल्ड की जो नोज है वो अपने मदर की तरह रिजेंबल कर रही है, वेराज जो दूसरा चाइल्ड है उसकी आईज अपने फादर से रिजेंबल कर रही है. सो ये सब डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट्स के स्ट्रक्चर बुक में से पार्ट्स जो है एक साथ ही कंबाइन हुए हैं. नेक्स्ट वी कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सी स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है अपने फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स का यूज करते हैं मेल एंड फीमेल गेमीज प्रोड्यूस करने के लिए. जो पॉलन ग्रेन्स एक एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें मेल गेमीज कहा जाएगा. दिस इज द एंथर पार्ट. एंड वेयरएज ओव्यूल्स, दिस इज ओव्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल आपका डीप विद इन द फ्लावर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फीमेल गेमीट्स होते हैं प्लांट के. तो पॉलन को ट्रांसफर किया जाता है एक अनदर फ्लावर तक, इसके थ्रू विंड, इंसेक्ट और एनिमल्स के थ्रू. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पॉलिनेशन. तो जब मेल एंड फीमेल गेमीट्स यूनाइट होंगे यानी कि आपस में कंबाइन होंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड वो जाइगोट आगे चल के सीड में डेवलप हो जाएगा. फिर ये जो फ्लैशी पार्ट होता है फ्लावर का सराउंडिंग द ओव्यूल, इट ग्रोज इनटू अ फ्रूट. उसके बाद जब बर्ड्स और एनिमल्स उस फ्रूट को खाएंगे तो जो सीड्स है वो ऑफनली पेरेंट प्लांट के थ्रू ड्रॉप कर दी जाती है जिससे वो प्लांट स्प्रेड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बैनियन सीड जो बर्ड ने ड्रॉप करी है ना, हो सकता है वो फ्रूट के अंदर खाली हो, में स्प्राउट इन अ क्रैक इन अ वॉल आफ्टर द रेन्स. सो अब जब वो सीड कहीं भी फॉल करेगी एंड वाटर रिसीव करेगी तो वो अपने अंदर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को यूज करके इट विल ग्रो द रूट्स एंड शूट्स आउट ऑफ इट. ओके, इन ग्रेड 6 यू स्टडीड सीड जर्मिनेशन है ना, जहाँ पे आपने क्या देखा था कि टिनी शूट्स पहले आपकी ऑब्जर्व करी जाती हैं एंड देन द फर्स्ट लीव्स एमर्ज थ्रू आउट ऑफ इट. देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स में जो गेमीट्स हैं उन्हें कहा जाता है स्पर्म. ठीक है, मेल गेमीट्स को स्पर्म कहा जाता है एंड फीमेल गेमीट्स को एग कहा जाता है.
एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल फिशेज या फ्रॉग्स अपने स्पर्म एंड एग्स को वाटर में रिलीज करते हैं, जहाँ पे वो कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं. सो इन एनिमल्स के अंदर जाइगोट एक फिर आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है इन द वाटर ओनली. बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स स्पर्म्स को डिपॉजिट किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, एंड देन फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा जब स्पर्म एग तक रीच करेगा विच इज प्रोड्यूस बाय द फीमेल. एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट बर्ड्स में फर्टिलाइज एग जो होता है यानी कि जाइगोट वो फीमेल के थ्रू ले किया जाता है. उसके बाद जाइगोट एक एम्ब्रियो में डेवलप होगा आफ्टर द एग इज लेड, है ना, ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस. नाउ कंसिडर कि कितना फूड जो है फीमेल को प्रोवाइड करना पड़ता है ईच एग में. सो इट हैज टू सस्टेन द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंटिल इट हैचेस. सो ये एक स्ट्रेटेजी है ये इंश्योर करने के लिए एम्ब्रियो को एनफ न्यूट्रिशन मिले. देन मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जाइगोट एक एम्ब्रियो में डेवलप होगा इनसाइड द फीमेल बॉडी ओनली. ठीक है, मदर बॉडी उन्हें सारा फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी जो उस बेबी को नीडेड है टू ग्रो अंटिल द बर्थ. सो एक डिफरेंट मेथड है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, ठीक है, एज कंपेयर टू बर्ड्स विच ले एग्स. नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ? सो स्टूडेंट्स, लाइफ जो है अर्थ पर वो डिपेंड करती है एक डेलिकेट बैलेंस के बीच में बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. बट ह्यूमन एक्टिविटीज इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं. इवन जो छोटे छोटे चेंजेस ग्लोबल टेम्परेचर में, ऑक्सीजन लेवल पे या ओजोन लेयर पे आ रहे हैं, दे कैन थ्रेटन द लाइफ ऑन अर्थ. सो टुडे आज के टाइम पे मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं दैट इज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन. एंड इन सभी को मिलकर कहा जाता है ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जो आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो सच एज कोल एंड ऑयल, इससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एंड ये गैसेस एडिशनल हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर प्राप्त कर लेती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. नॉर्मली अर्थ एक बैलेंस मेंटेन करता है बिकॉज ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, इवन टिनी ओशन प्लैंकटन आल्सो एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं. बट फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से एक्स्ट्रा कार्बन रिलीज हो रहा है जो कि अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स. एंड अर्थ इस कार्बन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जिससे हीट बिल्डअप होने लगती है. इवन एक छोटा सा राइज भी टेम्परेचर में क्या कर सकता है, आइस कैप्स को मेल्ट कर सकता है. सी लेवल्स रेज हो जाएंगे जिससे कोस्टल सिटीज में फ्लड जाएंगे, एक्सट्रीम वेदर ट्रिगर होगा, एंड ऑल्सो इट विल कॉज मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स टू डिसअपीयर. एंड यही लॉन्ग टर्म चेंजेस आपके टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न्स में, इन्हें कहा जाता है क्लाइमेट चेंज. Now when natural habitats, अब स्टूडेंट्स जब नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं तब प्लांट्स और एनिमल्स आपके वैनिश होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है. फॉर एग्जांपल एज वी डिस्कस इन चैप्टर 12, यानी कि अगर ग्रासेस डिसअपियर हो जाएंगी तो जो हर्बीवोर्स है लाइक डियर और ग्रास हॉपर्स, इन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए. एंड हर्बीवोर्स के बिना जो प्रेडेटर्स है लाइक टाइगर्स और फॉक्सेस, इनका भी फूड सोर्स खत्म हो जाएगा. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक रोल होता है एंड एक फ्यू ऑर्गेनिज्म के भी लॉस होने से एक नेचर की जो एबिलिटी है लाइफ को सपोर्ट करने की वो वीक हो जाएगी. पोल्यूशन भी प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स बना रहा है. एयर पोल्यूशन जो फैक्ट्रीज, व्हीकल्स या फ्यूल्स के बर्निंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है वो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट दोनों को ही अफेक्ट करता है, जिससे रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, डैमेज द क्रॉप्स एंड ऑल्सो लीड टू स्मॉग एंड एसिड रेन. Then after that climate change जो है स्टूडेंट्स लाइफ को काफी एस्पेक्ट्स में इम्पैक्ट करता है, जैसे कि फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन एंड वाटर अवेलेबिलिटी टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड ह्यूमन हेल्थ. सो इन सभी चीजों को या लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑन द अर्थ इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम पोल्यूशन रिड्यूस करें, क्लीनर सोर्सेज यूज करें एनर्जी के, एंड ऑल्सो मेक मोर सस्टेनेबल चॉइसेस. ठीक है, एंड वी हैव आल्सो लर्न कि जो अर्थ पे लाइफ है it thrives within a delicate balance maintained by interconnected natural system. However, ये जो balance है वो increasingly threaten हो रहा है human activities की वजह से. Even जो small changes है जैसे कि slight decrease or increase in oxygen level, minor shifts in global warming और a small reduction in atmospheric ozone, ये सारी चीजें क्या कर सकती है, लाइफ जो है अर्थ पर उसको रिस्क में डाल सकती है. वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी क्या कर रहा है, सीरियस थ्रेट पोज कर रहा है टू द लाइफ.
फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड प्लास्टिक से निकलने वाला जो वेस्ट है वो एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहा है एंड ऑल्सो मेकिंग द वाटर अनसेफ. Excessive use of fertilizers, improper waste disposal, it pollutes the soil also. जिससे क्रॉप yield लो हो जाएंगे एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है फूड चेन के थ्रू स्प्रेड होंगे. तो सभी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना अगर है तो उसमें आपको बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड एज वी हैव सीन कि ऑल अर्थ सिस्टम दैट इज हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड जियोस्फेयर ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं. तो अगर इनमें से किसी एक को भी डैमेज होगा तो उससे बाकी सब पे भी इफेक्ट आएगा. तो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जाए. कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके, लाइक सोलर एंड विंड, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी एंड आप बेटर एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज जो है ट्रैवलिंग के उनको अडॉप्ट कर पाएंगे. प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना भी एसेंशियल है बिकॉज डाइवर्स इकोसिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड होते हैं. लोकल कम्युनिटीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करने के लिए. एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट रीयूजिंग, रिपेयरिंग एंड रिसाइकलिंग आइटम्स सच एज क्लोथ्स एंड प्लास्टिक. ये हेल्प करते हैं पोल्यूशन एंड वेस्ट को रिड्यूस करने में. स्मॉल एक्शंस लाइक सेविंग वाटर एंड एनर्जी ये कलेक्टिवली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. सो लर्निंग मोर, शेयरिंग नॉलेज एंड एनकरेजिंग अदर्स ऑल्सो हेल्प. सो इन कंक्लूजन, सस्टेनिंग लाइफ, अर्थ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन से अपने लेवल पर एक्शन की रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज टू द ग्लोबल लीडर्स. एंड when we will work together, we will live responsibly, we can protect this unique planet and also secure its future. All right? The chapter is completed. That's all for today. And I hope you must have understood the importance of life on the earth, the factors which make life sustainable on the earth. Right? So let's meet very soon. Till then, keep going well, learn very well, and thanks to everyone.